Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and every one of the class 12s on the same platform of Life Physics. As you all know that we have started our next chapter or the next unit named as the magnetic effect of the electric current. The first two lectures for this chapter would be exactly similar to revise the basics. So I am again requesting each and every one, the student, those who are joining directly, जिन्होंने last lecture miss किया है और अभी check out कर रहे हैं, so please first of all go through the first two lectures of the basics of the magnetic field, magnetic effect due to the electric current, where we discuss about the magnetic field in the 10th class level. So you can check out on the same YouTube channel in the 10th class playlist. After this, in the previous lecture we started from the class 12 and we discussed about the one of the most important law that holds true or that gives the value of the magnetic field due to any current carrying conductor at any particular point, and that formula was Biot-Savart's law. And if I recall that formula for a moment, the formula for the Biot-Savart's law dB was mu naught by 4 pi I dl sine theta divided by r square. And as we know, or as you all know that we have done or we have started the applications of the Biot-Savart's law. Means we are going to use this expression because you know that this expression is for magnitude of the magnetic field, but due to the small length section, small length की वजह से magnetic field का expression है ये. So we have to find out the magnetic field at various positions due to the different shapes. So we have done only one of the application. हम लोगों ने केवल एक application कर चुके हैं, and that application was magnetic field at the center of the circular loop. तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन वेरियस अदर शेप्स और अंडर वेरियस अदर कंडीशंस पे हम लोग काम करेंगे. सो प्लीज you should be clear with the Biot-Savart's law, and let me revise again, where mu naught by 4 pi is the magnetic constant, where particularly mu naught it is being called as the permeability, whose value is 4 pi into 10 power minus 7 Tesla meter per ampere. Okay, this was your mu naught. Then I, you know that what is the I? I stands for the amount of current flowing through the conductor. dl stands for the small length of that current carrying conductor, और जिसे हम लोग length vector भी कॉल करेंगे. ओके, एंड दिस लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा? जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा. ओके, लेट मी क्लियर. एंड देन r रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. सो r रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द स्मॉल सेक्शन, और इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कहां पे है, बिकॉज वो ही डिसाइड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. सो दैट्स व्हाई दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, एंड angle between the position vector and the length vector is represented with the theta. So this is been the expression. Now on the YouTube I am getting some of the comments. कुछ चीजें मेरे पास अवेलेबल आई हैं तो उस चीज को मैं अभी स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ. That I got a one comment, मुझे एक कमेंट मिला और एक genuine question है यहाँ पे. That sir you have given us the SI unit. आपने हमें मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट दे दी, and which is Tesla, जो हमने बेसिक्स 10th क्लास के बेसिक्स में डिस्कस किया. सो दैट इज द ग्रेट थिंग. ओके, यहीं से हम लोगों ने म्यू नॉट की यूनिट को डिफाइन किया. सिंस इट इज टेस्ला, इट इज एम्पियर, इट इज मीटर एंड इट इज मीटर स्क्वायर. ओके, सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो म्यू नॉट का ऐसा यूनिट क्या आएगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन जो मेरे सामने पुट अप किए गए हैं, तो मैं उन्हीं को सॉल्व और आंसर देता हूं. एंड द क्वेश्चन इज सर व्हाट अबाउट द डायमेंशन फार्मूला. ये बहुत आता है बिकॉज यू नो दैट जैसे आज यहाँ पे परमिएबिलिटी है,
मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ द मैग्नेटिक कैरेक्टर। ऐसे ही हम लोगों ने एक और एबिलिटी को ऑलरेडी स्टडी कर चुका है, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, एंड दैट एबिलिटी इज कॉल्ड वाज कॉल्ड परमिटिविटी, एफिशिएंट नॉट। तो हमने उस एफिशिएंट नॉट की एसआई यूनिट भी देखी, हमने उसका डायमेंशन फार्मूला भी देखा, एंड यू नो दैट ये समटाइम्स कंपटीशन में, क्लास टेस्ट में और ये चीज रखी जाती है, तो यहाँ पे भी लागू होता है। बट सर अभी तक आपने बायोट भी बता दिया, म्यू नॉट का इंट्रोडक्शन भी दे दिया और आप एप्लीकेशन पे चले गए हो और अभी तक आपने इसका डायमेंशन नहीं बताया, ना ही मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास कोई डायमेंशन है अभी तक। सो फॉर दैट आई विल से कि इसके लिए हमें अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड जो अभी हमारे सामने है, इसमें बाकी अदर चीजों का डायमेंशन मालूम है, मुझे मालूम है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ करंट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द आर स्क्वायर, but I do not know the dimension of mu naught and I am not having any information about the dimension of magnetic field. अभी तक mu naught permeability और magnetic field का dimension का कोई information नहीं आया, तो this single formula है अभी तक हमारे पास, और इस single formula में दो unknown dimension की quantities हैं हमारे पास, दो ऐसी quantities हैं जिनका dimension हमें नहीं मालूम है एक ही single formula में। तो अभी के लिए हमारे लिए सस्पेंस का काम है और ये सस्पेंस थोड़े लेक्चर्स तक और चलेगा। सो वी विल डिफाइन, वी विल गेट द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन भी मिलेगा, परमिएबिलिटी का, बट ये सस्पेंस थोड़े टाइम तक बना रहेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो किसी के दिमाग में डाउट आया हो तो उस एक दो लोगों ने पूछा है, कुछ लोगों के दिमाग में चल ही रहा होगा, ओके कैजुअल डाउट था तो सोचा नहीं ठीक है छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब भी छोटा भी डाउट आता है उसे प्लेस जरूर कीजिए, ओके। सो हमें फ्यूचर में मिलेगा तो कुछ लेक्चर्स आपको वेट करने पड़ेंगे, नियर अबाउट 3-4 लेक्चर्स वेट करते हैं, फिर उसके बाद आपको इसका प्रॉपर आंसर मिलेगा विद द रेलेवेंट रीजन, because I can't give you the specific, okay this is the dimension of magnetic field right now, so I would not give you such type of character, मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, okay। So this was the Biot-Savart's law and we are going to do the application for that, and today's application is that we are going to find out the magnetic field, because you all know that Biot-Savart's gives this magnitude of the magnetic field, तो हम लोगों ने एक जगह पे तो निकाल लिया सर्कुलर लूप की वजह से, वो भी उसके सेंटर पे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट वायर को, एंड टुडेज एप्लीकेशन, और आप बोल सकते हो एप्लीकेशन नंबर 2, आप काउंटिंग दे दीजिए। So yesterday's means previous lectures application means magnetic field at the center of circular loop was your first application, and this one is your second application that we are going to start. And what is the second application? Is magnetic field due to finite straight wire। प्लीज इस बात को क्लियर करेंगे हम लोग। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। सो वी आर गोइंग टू हैव अ वायर व्हिच कैरीज अ करंट, जो करंट कैरी करेगा, बट दैट वायर शुड बी फाइनाइट। पहली बात तो वो फाइनाइट होना चाहिए, मींस उसके एंड पॉइंट होने चाहिए, उसकी लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए, एंड द सेकंड थिंग इज इट शुड बी स्ट्रेट। तो फाइनाइट वायर हो और स्ट्रेट वायर हो। So this is our second application, finite straight wire, and check this out. So we have a wire named as AB. Okay, ध्यान से देखना प्लीज, important diagram, very much important, और ये derivation थोड़ा lengthy जाएगा तो थोड़ा सा starting में ही warn कर देता हूँ। So we have a straight finite wire, okay, which carries the current capital I. Let's suppose the current is going from A to B, okay। You all know that the direction of current will decide the direction of magnetic field, और अभी हम लोग केवल क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो अभी के लिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन एंड में जरूर निकालेंगे, जैसे सेंटर पे निकाला था ना, आइदर इनवर्ड और आइदर आउटवर्ड, सो वो भी करेंगे लास्ट में। सो दिस इज अ स्ट्रेट वायर, फाइनाइट स्ट्रेट वायर having the current capital I. This is a point P. So we have a point P where we want to find out the magnetic field. So we have a point P, and the distance of the point P
from the wire is small a. So what is the small a? Small a is the perpendicular distance from the straight current carrying wire. तो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a. ओके, इट डज नॉट मीन कि p पॉइंट इन दोनों के बीच में है. प्लीज मैं इस चीज को और क्लियर कर देता हूं. बीच में मतलब मिड में नहीं है, तो कहीं पे भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनके सामने है. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, what we are going to consider, let us consider a straight finite wire, a straight finite wire carrying capital I current, carrying capital I current. A point P is considered at a perpendicular distance. A point P is considered at a perpendicular distance small a from the wire. हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है? हम लोगों ने P पॉइंट को कंसीडर किया जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और लेट्स सपोज उसका वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? स्मॉल. Okay, so since we have to use the Biot-Savart's, and you all know that Biot-Savart's holds true for the small section length of the wire. यानी Biot-Savart's हमें magnitude of the magnetic field का फॉर्मूला देता है, but small section यानी small length की वजह से, तो अब हमें एक small length consider करना है. So let us consider this is your dl vector. और dl वेक्टर का डायरेक्शन कहां पे होगा? dl वेक्टर का डायरेक्शन वहीं पे होगा जहां पे करंट है. तो हमने करंट कहां अज्यूम किया? a to b, तो हमारा dl वेक्टर भी ऊपर की तरफ होगा. ओके, दिस इज योर स्मॉल सेक्शन. लेट्स सपोज दिस इज योर o पॉइंट. ओके, उसके p पॉइंट के सामने वाला पॉइंट कौन सा? o. ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ द o पॉइंट फ्रॉम द स्मॉल लेंथ सेक्शन इज l. So this is your P point where we want to find out the magnetic field. The P point is at a distance of small a, or you can say the perpendicular distance wire से कितना है? Small a. ये हमारा small section है. So let the small section dl vector, small section dl vector. तो ये हमारा वो स्मॉल सेक्शन है dl वेक्टर, और इस स्मॉल सेक्शन ऑफ द वायर के छोटे से हिस्से का उस O पॉइंट से डिस्टेंस हम लोगों ने क्या ले लिया? L. सो व्हाट इज द L रिप्रेजेंट? L represent the distance of the small point or the distance of the small section from the O point. ओके, O इसका सेंटर नहीं है. मैंने आपको बोला जरूरी नहीं कि P पॉइंट इसके सेंटर पे हो. P पॉइंट वायर के सामने है, बस इतना है. ओके, and you all know that this is the point जहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. This is the small section. So what is that distance is called? इस डिस्टेंस को क्या बुलाएंगे? R vector. Position vector ना? Remember what is the definition of position vector? It is the distance of the point where we want to find out the magnetic field from that small section. तो ये डिस्टेंस हो गया R, ये हो गया A, और ये हो गया L जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया. ओके, एंड दिस इज योर dl वेक्टर जो कि A से B जा रहा है क्योंकि करंट हम लोगों ने A से B लिया. ये हमारा पोजीशन वेक्टर. सो व्हाट यू कॉल दैट एंगल? दिस एंगल इज थीटा. ओके, सो अ स्मॉल सेक्शन dl वेक्टर is at distance of r vector, is at distance of r vector from point P. यानी हमारा जो स्मॉल सेक्शन हम लोगों ने कंसीडर किया है वो P पॉइंट से कितना दूर है? R डिस्टेंस पे. ओके, सो thus आई एम गोइंग टू डू इट हियर. मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ. सो thus according to Biot-Savart's law, according to Biot-Savart's law जो हम लोगों ने स्टडी किया है, that magnetic field due to small section, यानी P पॉइंट पे इस स्मॉल सेक्शन की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? इट वुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई.
So we are not considering any medium between the wire and the P point. हम wire और P point में कोई medium consider नहीं कर रहे हैं. हम ये मान के चल रहे हैं we are in the air or in the vacuum. तो हमारा permeability mu naught चलेगा. What was the current through the small section? उस small section से current कितना है? I, क्योंकि यही I पूरे wire से, तो I. What is the length of the small section? dl. Okay. Divide into sine of एंगल बिटवीन द लेंथ वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर. तो यहाँ पे dl वेक्टर और r वेक्टर में एंगल कितना है? लेट्स सपोज इट इज बीइंग थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ dl फ्रॉम द p पॉइंट. ओके, नाउ इफ आई गिव यू द बेसिक आइडिया, ये लेंथी क्यों होने वाला है वो बात सुनिए. हम लोगों ने लास्ट टाइम सर्कुलर पे अप्लाई किया था और वहां पे हमें पता चला the length vector direction, the dl vector का डायरेक्शन सिंस सर्कुलर लूप था तो along the tangent गए. ओके, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे आपका डायरेक्शन along the tangent. और हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालनी थी? सेंटर पे. यानी जो सेंटर है, ओ जो हमारा सेंटर था वही हमारा पॉइंट था जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो dl वेक्टर सर्कमफेरेंस पे है, पॉइंट आपका जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो आपका सेंटर पे है. तो सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बुलाते हैं, तो वही हमारा पोजीशन वेक्टर बन गया. और हमारी मैथमेटिकल नॉलेज अबाउट द सर्कल क्या कहता है? दैट द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर मींस एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90. तो वहां प्रॉब्लम सॉल्व था. ओके, प्रॉब्लम सॉल्व क्या था कि थीटा वाज 90 बट यहां पे नहीं है, यहां पे थीटा 90 नहीं है, थीटा कुछ है. ओके, अब प्रॉब्लम को सुनिए, यहां पे प्रॉब्लम क्या है. तो देखो चीजें आसान है, जैसे वहां पे किया था अप्रोच यही यहां पे भी ऐसा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड एट अ P पॉइंट ड्यू टू स्मॉल सेक्शन मिल गया. तो अब इस P पॉइंट पे पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो क्या करना है इसका? What we have to do to calculate the magnetic field due to complete wire? We will go with the integration technique of the mathematics. हमें टोटल निकालना है तो हम इंटीग्रेशन के साथ जाएंगे. But now I want to revise the basic concept of the integration. तो इंटीग्रेशन हम लोग अप्लाई करते हैं. But you all know that in integration or if we want to perform the integration of any equation, in that equation only one thing should be variable. उसमें केवल एक क्वांटिटी वेरिएबल होना चाहिए. एक क्वांटिटी वेरिएबल है, बाकी अदर को कांस्टेंट लीजिए. ओके, बाकी अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो उस क्वांटिटी पे डिपेंड होने चाहिए. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट यहां पे क्या प्रॉब्लम है? स्मॉल सेक्शन का निकल गया तो नेट निकालने के लिए चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. बट अब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या क्या चीजें कांस्टेंट निकल के आती है. म्यू नॉट बाय 4 पाई, डेफिनेटली इट इज अ कांस्टेंट क्योंकि ऑल ओवर द प्लेस इट इज एयर और द वैक्यूम. I is the current. तो आप A से लेके कहां पढ़ना चाहते हो? B तक कंप्लीट वायर को पढ़ना चाहते हो बिकॉज़ वायर इज फाइनाइट लेंथ A to B. और अगर हम पूरे वायर को स्टडी करना चाहते हैं तो I is the current जो पूरे वायर से सेम है, तो करंट कांस्टेंट है. अब आइए नेक्स्ट dl वेक्टर. dl मींस स्मॉल लेंथ. अब ये लेंथ यहां था. अब अगर मैं A से B पढ़ना चाहता हूं तो क्या ये लेंथ सेक्शन बदलेगा? डेफिनेटली बदलेगा क्योंकि हमने तो वायर का छोटा सा लेंथ लिया है. तो जब हम पूरा यहां से लेके यहां तक पढ़ेंगे तो लेंथ को तो वेरिएबल होना ही होना है. तो dl इज वेरिएबल. मैं साइड में लिख देता हूं. तो dl वेरिएबल है. ओके, गुड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द r. r स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस ऑफ द p पॉइंट फ्रॉम द dl. चलो अब हम a पर पढ़ रहे हैं, हम यहां पे पढ़ रहे हैं तो यहां से देखो r कितना होगा. थोड़ा ऊपर गए तो r कुछ. तो जब हम पूरे वायर को पढ़ेंगे तो आपका P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, अगर मैं डायग्राम यहां पे बना के दिखाऊं, ये P पॉइंट, पहले ये डिस्टेंस. अगर आप पूरे वायर को स्टडी करना चाहते हो तो ड्यू टू द होल वायर P पॉइंट का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लीट लेंथ ऑफ द वायर इज ऑलवेज डिफरेंट. पहले ये डिस्टेंस अगर आप इस एंड को स्टडी करते हो, थोड़ा आगे जाते हो तो डिस्टेंस कुछ और होगा, सामने आते हो तो कुछ और होगा, और इस तरीके से ये r भी चेंज होगा हर जगह. ओके, सो यहां पे r फंक्शन इज आल्सो वेरिएबल मींस r भी बदलेगा बार-बार. थर्ड क्वांटिटी इज द थीटा. थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड द r. तो पहले ये अगर इस पॉइंट पे स्टडी करते तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा r. यहां पे देखो
आप देखिए हर जगह आपका थीटा क्या है, डू द थीटा इज ऑलवेज बीइंग सेम, क्या थीटा आपका हर बार सेम है हर जगह? नो। तो यहां पे थीटा भी सेम नहीं है, वो भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है। सो बात क्या निकल के आई? द पॉइंट इज दैट इफ यू वांट टू स्टडी द इंटीग्रेशन, अगर हम पूरे वायर को स्टडी करना चाहें तो ये पूरे वायर को पढ़ते टाइम ये लेंथ भी बदलेगा, ये आर भी बदलेगा, और ये इन दोनों के बीच का ये जो थीटा है ये भी अलग अलग पोजीशन पे ए बी वायर पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। बट सर्कल के सेंटर पे निकाला था तब ऐसा नहीं था, थीटा वाज ऑलवेज 90। मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, r मींस पोजीशन वेक्टर, बट सर्कल के सेंटर के लिए हमारे पोजीशन वेक्टर क्या थी? रेडियस। तो आप पूरे सर्कल को पढ़िए, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ पोजीशन हमेशा रेडियस के बराबर, और ये तो आप जानते हैं रेडियस फॉर अ गिवन सर्कल हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो केवल एक ही चीज वेरिएबल था, क्या? dl, और हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया, दैट वाज सिंपल। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे कंप्लीट वायर में ये तीनों चीजें बदलेंगी, लेंथ भी बदलेगा, जब आप पूरे वायर को पढ़ने जाओगे तो लेंथ भी बदलेगा, जब आप पूरे वायर को अलग अलग पॉइंट पे कंप्लीटली स्टडी करने जाओगे तो विद रिस्पेक्ट टू पी पॉइंट, यानी पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वायर का हर पॉइंट पे अलग अलग पोजीशन है, ओके, और आर और डीएल वेक्टर बदल रहे थे, उनके बीच का ये थीटा भी हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, दैट इन दिस इक्वेशन ऑल द थ्री क्वांटिटीज आर वेरिएबल। अब तीन चीजें हैं जो बदल रही हैं अगर हम इस कंप्लीट वायर को स्टडी करने जाएं, तो थ्री थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू चेंज। तो अब इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है? इंटीग्रेशन में तो एक वेरिएबल होगा, यहां तो तीन तीन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, यहां पे अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। एंड व्हाट इज दैट मॉडिफिकेशन? चेक दिस आउट। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एंगल। सो यहां पे मैंने एक और एंगल ले लिया है फाई। Phi indicates the angle. Phi क्या इंडिकेट कर रहा है? एंगल between the line of A. A क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की एक्सिस और पोजीशन वेक्टर की एक्सिस के बीच का एंगल। तो इस phi को ले लेते हैं अभी के लिए, और आप आगे स्टोरी को देखिए क्या होने वाला है। तो here I have taken the phi, तो O P, और let's suppose this point is S, okay, OPS। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको? सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। तो प्लीज क्लियरली इन ट्रायंगल OPS, ओके। सो यहां से प्लीज मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी बताइए। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं आपको लास्ट में आंसर दूंगा कि मैंने इस पाई को क्यों लिया, लास्ट में पता चलेगा। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी के लिए आप मुझे बिल्कुल ज्योमेट्री का सिंपल में हेल्प कीजिए। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लग रहा है? दिस इज 90 बिकॉज़ इट वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस एंगल को क्या ले लिया है? फाई, और ये एंगल क्या है? थीटा। सो 90 प्लस थीटा प्लस फाई शुड बी इक्वल टू 180, और थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। इज दैट ओके टू राइट हियर? ऐसे लिखना सही है क्या? देखिए प्लीज एक बार। ओके, सो दिस इज द बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें थीटा क्या मिल गया? फाई की टर्म में। सो हमने थीटा को फाई की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अभी पता चलेगा क्यों। ओके, डन। ओके, इन द सेम ट्रायंगल, आई एम वर्किंग इन अ सेम ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल OPS, और बेसिकली यहाँ पे एक ही ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्या आप मुझे यहाँ पे tan phi में हेल्प करेंगे? विल यू हेल्प मी इन tan phi? व्हाट इज tan phi? सो tan is always is equal to perpendicular by base। सो इस phi के लिए परपेंडिकुलर कौन है? OS, और बेस कौन है? OP। सो tan phi is equal to OS divided by OP। And what is the OS is representing? L, यही हम लोगों ने L लिया था। And what is OP is representing? A। So यहां से L क्या आया? A tan phi। What is the L? A tan phi। तो एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे, differentiate with respect to phi। तो दोनों तरफ phi के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पे क्या बनेगा? dl by d phi। Differentiation of L with respect to phi। A, what is the A? A stands for the perpendicular distance of the P point।
तो आप वायर को कहीं पर भी पढ़िए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पी पॉइंट का ए ही रहेगा जो सामने है, तो वो तो कांस्टेंट है। और tan phi का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन secant square phi. Okay, so what is the differentiation of tan phi with respect to phi? Secant square phi. तो यहां से हमें dl क्या मिला? a secant square phi d phi. Am I clear with the equation number 3? तो देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर आप लोग इस चीज को कैच कर पा रहे हैं, दैट हमारे पास तीन ऐसा क्वांटिटी था जो वेरिएबल चल रहा है। अब तीनों वेरिएबल को एक इंटीग्रेशन में तो नहीं हो सकता। अब देखो एक और चीज है जो यहां पे बदलेगी, अगर हम लोग इस पॉइंट पे स्टडी करते हैं तो ये फाई एंगल कुछ और होगा। जैसे जैसे हम इस वायर को स्टडी करते जाएंगे तो ये फाई एंगल की वैल्यू बार बार बदलती जाएगी। तो ये फाई एक ऐसा एंगल है जो बायट-सेवर्ट्स में नहीं था। इन द बायट-सेवर्ट्स लॉ देयर हैज बीन नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फाई, कोई डेफिनेशन ही नहीं थी इसकी। बट हम लोगों ने इसे इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम है कि इन दिस इक्वेशन तीन अलग अलग वेरिएबल है। अब हम लोगों ने फाई को एज अ कॉमन वेरिएबल ले लिया। फाई भी वेरिएबल है, ये एंगल भी जब आप ए से लेके बी तक पढ़ेंगे तो ये फाई एंगल की वैल्यू भी चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन तीनों वेरिएबल को फाई में रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चेक दिस आउट, अगर आप इसको कैच कर पा रहे हैं। So by applying the angle sum property हम लोगों ने थीटा को फाई में कन्वर्ट कर लिया। Check this out. By applying the tangent और फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने dl को देखो फाई में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो क्या क्या वेरिएबल था, थीटा बदल रहा था, थीटा को फाई में कन्वर्ट कर लिया, तो देखो फाई भी बदल रहा है। So थीटा वेरिएबल है, फाई भी वेरिएबल है, बट हम लोगों ने दोनों में एक रिलेशन निकाल दिया। तो थीटा को किस में कन्वर्ट कर लिया, वेरिएबल एंगल अनदर फाई। dl को भी देखो किस में कन्वर्ट कर लिया, फाई में। अब एक और वेरिएबल बच गया, क्या, r रहेगा हमारा। तो चलिए r पे भी काम करते हैं। सो ओके, आई एम वर्किंग हियर, मैंने तीनों को अलग रखा ताकि आप तीनों को ध्यान दे सके। सो इन द सेम ट्रायंगल OPS, ओके, इसी ट्रायंगल में क्या आप मुझे cos phi बना के देंगे? विल यू हेल्प मी इन द cos phi? So cos phi would be base by hypotenuse, so it would be a by r, और यहां से आपके पास r क्या आएगा, a divided by cos phi, and what is 1 by cos? 1 by cos is secant, so it would be a secant phi. This is our equation number 4. तो हम लोगों ने r को भी किस में कन्वर्ट कर लिया, phi। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, what was the problem in this expression? The problem was the three functions or the three terms are variable in a given equation. इस इक्वेशन में तीन ऐसी चीजें हैं, जब इंटीग्रेशन यानी कंप्लीट वायर को पढ़ने जाएंगे तो तीन चीजें चेंज होगा। तीनों, dl भी वेरिएबल होगा, ये पोजीशन भी बदलेगा और थीटा भी बदलेगा। अब तीन वेरिएबल एक ही इक्वेशन में, बहुत नाइंसाफी है भाई, ये तो है ना वो गब्बर वाला डायलॉग कि भाई तीन वेरिएबल और इक्वेशन एक, बहुत नाइंसाफी है। अब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये हो नहीं सकता। तो मतलब तीन वेरिएबल को एक साथ कैसे इंटीग्रेट करें, तो हम लोगों ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, वी हैव टेकन और डिफाइंड दिस एंगल। इस एंगल को ध्यान दीजिए, फाई, और हमने जब इस फाई को डिफाइन या फाई को एंगल को इंडिकेट किया, अब हम लोगों ने इसी ट्रायंगल में जिसमें हमारे पास dl भी है, r भी है और थीटा भी है, जो तीन वेरिएबल प्रॉब्लम थी, हमने तीनों वेरिएबल्स को एक न्यू वेरिएबल की फॉर्म में रिलेट कर दिया। देखो फाई भी वेरिएबल है, तो हम लोगों ने क्या किया, इन तीनों वेरिएबल को फाई के साथ रिलेट कर दिया। तो अब देखो तीनों वेरिएबल एक कॉमन चीज के साथ रिलेट हो गए, और वो कॉमन चीज क्या है, फाई। तो अब चलिए प्लेस करते हैं इन वैल्यूज को। सो बाय इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन मींस 2 3 एंड 4 की वैल्यू 1 में रख देते हैं। सो व्हाट वुड बी द न्यू dv, dv क्या होगा, चलिए ट्राई करते हैं। सो इट वुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई i, ये तो कांस्टेंट था। dl का वैल्यू क्या मिला, द dl इज a secant square phi d phi, got it? Okay, after this I dl sin, what is the value of theta, theta हमारी प्रॉब्लम थी, तो थीटा कितना मिला, 90 minus 5, okay,
इसके बाद आपके पास क्या है आर स्क्वायर और आर क्या है a secant phi का होल स्क्वायर। ओके सॉल्व करें। सो dB would be mu naught by 4 pi I a secant square phi. Okay, e secant square phi d phi. Now what we have sin 90 minus phi. Okay, sin 90 minus theta, you all know that it would be cos theta, or sorry cos phi. The function is phi na, that's my mistake. Okay, but divide में a square secant square phi. Now solve it out. Secant square phi cancel with the secant square phi and 1a cancel with the 1a. तो हमें dB क्या मिला? dB is equal to mu naught by 4 pi I by a cos phi d phi. This is the new expression for the small magnetic field. Means the magnetic field at a p point due to the small section. तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू स्मॉल सेक्शन एट अ पी पॉइंट। बट एट दिस एक्सप्रेशन में अगर आप चेक करें नाउ इन दिस एक्सप्रेशन ओनली वन थिंग इज वेरिएबल एंड व्हाट इज दैट फाई। अब कोई मल्टीपल वेरिएबल नहीं है क्योंकि हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को एक न्यू वेरिएबल में रिलेट करके सॉल्व कर दिया और वो था फाई। सो नाउ आई होप आई एम क्लियर व्हाई हम लोगों ने ये प्रोसेस किया। ओके सो अब हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है एट पी पॉइंट बट एक ही वेरिएबल है बाकी अदर फैक्टर कांस्टेंट है। सो नाउ लेट अस हैव द नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो बिफोर ओके डायग्राम I think language please return कर लेना। Now I am rubbing the language. So now the point is dB. So thus net magnetic field. What? Net magnetic field at P. Okay? तो सीधी सी बात है इंटीग्रेशन करना है बट कहां से लेके कहां तक पढ़ना है? We have to study from the A to B. हमें पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक पढ़ना है पूरा। So this is our end point. तो let's suppose हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस एंड के साथ कितना एंगल बनाता है phi 1 and this perpendicular distance makes angle phi 2 with the B end. तो हमें पढ़ना है लोएस्ट पॉइंट यानी A से लेके B तक यानी phi 1 से लेके phi 2 तक। बट पॉइंट इज दैट कि हमारा जो P पॉइंट है वो A और B के बीच में है। ओके इन बिटवीन है। ओके इन बिटवीन और मिडिल को प्लीज अलग कीजिए। मिडिल मतलब सेंटर पे। ओके इन बिटवीन मतलब बीच में कहीं पे भी हो सकता है। सो P पॉइंट दोनों एंड पॉइंट के बिल्कुल बीच में है। कहां पे है? बीच में है। यानी हमारा एक एंगल हमारे लेफ्ट साइड पे है और दूसरा एंगल हमारे राइट साइड पे। तो यानी इफ वी टेक P एज अ ओरिजिन, अगर हम P को एज अ ओरिजिन माने क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो एक आपकी लेफ्ट की तरफ है और एक आपके राइट की तरफ है। तो लेफ्ट साइड को आप नेगेटिव ट्रीट कर लीजिए तो राइट साइड को आपको क्या ट्रीट करना पड़ेगा? पॉजिटिव। या फिर आप राइट साइड को नेगेटिव ले लीजिए लेफ्ट साइड को पॉजिटिव क्योंकि ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि लेफ्ट हमेशा नेगेटिव होता है। बट बात यहाँ पे ये है कि हम लोग यहां से एक तरफ से शुरू होके दूसरी तरफ जा रहे हैं। मतलब अगर मैं P पॉइंट हूं आप वायर हो, अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें यू आर द वायर आई एम द P पॉइंट। आपका एक एंड पॉइंट मेरे लेफ्ट में और एक एंड पॉइंट यहाँ पे। तो मुझे लेफ्ट से लेते हुए ये हमारा सेंटर पॉइंट है यानी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A। अब ये एंगल कितना बन रहा है? phi 1। ये एंगल कितना है? phi 2। तो हमें phi 1 से लेके phi 2 तक जाना है बट दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। लाइक चलो एक एग्जांपल ही और कोशिश करता हूं समझाने का, शायद माइट भी प्रॉब्लम आ रहा हो। इफ आई एम द ओरिजिन, अगर मैं ओरिजिन हूं 0 तो मुझे लेफ्ट के 2 से लेके राइट के 3 तक जाना है। बात को ध्यान से सुनना। I have to go from left 2 to right 3. लेफ्ट का 2 से लेके राइट के 3 तक। बताओ टोटल कितना हुआ? What is the distance between left of 2 and right of 3?
अगर मैं ओरिजिन हूं तो कितना 5। लेफ्ट ऑफ 2 को अगर नेगेटिव लेते हैं तो राइट ऑफ 3 को पॉजिटिव लेंगे, तो -2 से लेके 3 के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना है 5। यही होगा हमारा। ओके, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम 2 से लेके 3 तक पढ़ रहे हैं। कहां से लेके 2 से लेके 3 तक, तो 2 कहां है? अगर आप ये बोलते हो कि वी आर डीलिंग फ्रॉम 2 टू 3, तो यानी बाय डिफॉल्ट जब भी हम किसी भी नंबर के आगे साइन नहीं लगाते हैं तो हम लोग उसे कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। तो इसका मतलब हम उसे +2 से लेके +3 तक पढ़ रहे हैं। तो बताइए +2 कहां है? +2 मेरे राइट साइड में है। +3 कहां है? +3 मेरे राइट साइड में है। तो मैं 2 से लेके 3 तक पढ़ रहा हूं, तो 2 से लेके 3 तक का गैप कितना हुआ? ओनली 1। ये टोटल नहीं हुआ, ये 2 से लेके 3 है। अगर ये दोनों ही पॉइंट एक ही तरफ होते तब हम दोनों एंगल को पॉजिटिव ले लो या दोनों का एंगल को नेगेटिव ले लो। अगर आप राइट साइड को नेगेटिव लेते हो तो अगर आप बोलते हो कि सर मैं -2 से -3 तक पढ़ रहा हूं, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है ना, तो भी गैप 1 ही होगा। सर मैं +2 से +3 तक पढ़ रहा हूं, तो भी गैप 1 ही होगा। बट यहां पे पॉइंट को समझिए, यहां पे एक एंड पॉइंट अगर आपकी लेफ्ट में है तो दूसरे एंड पॉइंट आपकी राइट में है। तो अगर एक साइड को आपने नेगेटिव लिया है तो दूसरी को पॉजिटिव। इट डज नॉट मैटर आप किसको नेगेटिव लेते हैं किसको पॉजिटिव, वो आपकी चॉइस है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो होगा, यहाँ पे नेट आएगा। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। बट कहां से कहां? -(φ1) से +(φ2) तक, क्योंकि यहां पे इसमें वेरिएबल है φ, और φ कहां से बदल रहा है? इस एक्सट्रीम पॉइंट पे φ को मैंने φ1 मान लिया है और इसको मैंने φ2 सपोज कर लिया। अब अगर मैं एक साइड को नेगेटिव लेता हूं तो दूसरी साइड पॉजिटिव। आई होप एम आई क्लियर विद दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे कि हम लोग कहां से वेरिएबल कर रहे हैं φ1 से φ2, नहीं, ये वैसे ही हो जाएगा। वेरिएबल कहां से कर रहे हो? 2 से 3। अब 2 से 3 का गैप तो 1 ही होता है भाई, तो 2 से लेके 3 तक का टोटल डिस्टेंस 1 ही आया। बट एक्चुअलिटी में हम 2 ऑफ लेफ्ट से लेके 3 ऑफ राइट तक जा रहे हैं भाई, तो एक को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग वेरी करना है तो, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो डायरेक्शन बताती है। और अब हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग साइंस को यूज करते हैं। तो एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे अपोजिट वाली को नेगेटिव। इट डज नॉट मैटर कि मैंने यहाँ पे -φ1 से φ2 लिया है तो मैं φ1 को नेगेटिव लूं, नहीं है, आपकी मर्जी है। आप φ1 से -φ2 ले लो, a से b पढ़ लो या b से a पढ़ लो, आपकी चॉइस। किसी को भी नेगेटिव ले लो, किसी को पॉजिटिव, फाइनल एक्सप्रेशन वही आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं खुद पे। तो मैंने नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया। आप ऊपर वाले को नेगेटिव ले लो, नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो, कहीं से भी। आप a से b पढ़ लो, -φ1 से φ2 पढ़ लो, या φ2 से -φ1 पढ़ लो, वो आपकी चॉइस है कि मैं ऊपर से नीचे पढ़ूं या नीचे। पढ़ना हमें पूरे ही वायर को। ओके, सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट फ्रॉम -φ1 टू +φ2 μ0I डिवाइडेड बाय 4πa cos phi d phi। ओके, सो क्या क्या कांस्टेंट है? सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बट किसकी? फाइनाइट की। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट, बी फाइनाइट। कल लिखा था ना बी सेंटर, कल वाले बीच लास्ट लेक्चर में, तो उससे हमें बी के फॉर्मूले अलग अलग याद रहेंगे। सो इट वुड बी μ0I डिवाइडेड बाय 4πa cos का इंटीग्रेशन साइन फ्रॉम -(φ1) टू +(φ2). ओके, सो cos का इंटीग्रेशन क्या आ गया? साइन -(φ1) से +(φ2). ओके, नाउ सॉल्व दिस b फाइनाइट। ओके, अब देखो कुछ काम मैं आपके ऊपर लेफ्ट कर रहा हूं जानबूझ के यहाँ पे। इफ आई एम वर्किंग ऑन सम ऑफ द मैथमेटिक्स, तो एक बात आप प्लीज हमेशा याद रखिए कि कुछ मैथमेटिक्स के पार्ट हैं जो जानबूझ के कई बार टीचर आपको ब्लफ करने के लिए ट्विस्ट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे किसी इंटीग्रेशन को, किसी डिफरेंशिएशन को, किसी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को स्विच कर सकता हूं, मैं पहले ही ओपनली बोल रहा हूं। सो प्लीज दैट आई एम डूइंग बिकॉज ये हम लोग क्लासरूम में बहुत इफेक्टिवली करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 11th क्लास में कई बार मैं किसी फॉर्मूले को कुछ और बोल जाता हूं। दैट इज टू चेक योर प्रेजेंस।
सो इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, प्लीज अपनी आईज, अपने माइंड, अपने आप को फुली, जब भी आप लेक्चर्स या वीडियोस को देख रहे हो तो अपने आप को फुली क्लासरूम की तरह कंसंट्रेटेड होकर देखिए। इट इज नॉट अ कैजुअल मूवी लाइक स्ट्रक्चर की देखा, अगर मूवी में किसी स्टांस को या किसी डायलॉग को या किसी पॉइंट को अगर मिस भी कर गए तो आप सोचते हो ओके ठीक है, कहानी है, समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जो शायद मैं आपके साथ स्किप कर सकता हूँ, शायद मैंने कोई फॉर्मूला गलत लिख दिया हो। आई एम नॉट सेइंग कि मैं 12th का कोई फॉर्मूला गलत लिखूंगा, बट ये छोटे मोटे आगे तो चलो काम कर रहे आई होप। तो चलिए मुझे बताना कि मैंने tan phi का इंटीग्रेशन secant स्क्वायर phi किया है, क्या ये सही है नहीं है? मैं शायद इसे ट्विस्ट भी कर सकता था। I have written sin 90 minus theta as a cos theta, cos phi। क्या ये माइनस cos phi आना चाहिए था, cos phi आना चाहिए था? तो माइट भी कुछ जगह पे मैंने शायद ऐसा लिख दिया, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसे पॉइंट करें उसी टाइम, सर ने गलत कर दिया, ओके। और कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जिसमें मैं वो पॉइंट वैसे ही लेफ्ट करके चला जाऊंगा, और फिर आई एम वेटिंग फॉर दैट नेक्स्ट वीडियो कि कितने लोग ऐसे हैं जो उन पॉइंट्स को कैच करके मुझे वापस से रिप्लाई करते हैं, सर आपने इस वीडियो में ये पॉइंट मिस किया। दैट इज द ऑन पर्पस। तो अगर कुछ चीज ये हो रही है, अगर आप ढूंढ पा रहे हो, तो जब मेरे पास रिप्लाई आएंगे तभी मैं उस चीज को फीडबैक दूंगा, तभी मुझे पता चलेगा दैट यू आर अटेंटिव इन दैट, आप उसमें फोकस्ड हो। तो इस बात को, ये ट्रिग्नोमेट्री जो भी है, पुरानी चीजें, चाहे कोई एडिशन का वेक्टर कॉन्सेप्ट, अगर पुरानी चीजें अगर आप टेंटेटिव होके याद नहीं रखते तो यार सॉरी प्लीज, फिर मैं हेल्पलेस हो जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि L का डिफरेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में, अगर मैं आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज प्रॉब्लम है, मेडिकल वालों को थोड़ा इश्यू होता है, बट हमने फिर भी मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था, आपको वो पुरानी चीजें रिकॉल रखनी है, यू हैव टू, अदरवाइज आई वुड बी हेल्पलेस कि मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन करने जाऊं कि हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक के बायट की एप्लीकेशन को स्टडी करें, ओके। कोई सवाल पूछ सकता है, सर 90 माइनस फाइव cos फाइव कैसे हुआ? अब बेटा ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि sin 90 माइनस फाइव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में cos भी पॉजिटिव ही होता है इसलिए प्लस आएगा, कोई सवाल उठा है सर माइनस क्यों नहीं होगा? तो ये चीज आपको प्लीज थोड़ा सा याद रखना है पुराना। सो लेट्स हैव दैट mu naught I by 4 pi a, how to solve that? Upper limit sin phi 2 minus sin minus phi 1. So how we solve the limit? We solve the limit always upper limit minus lower limit. Okay? Till then अभी यहाँ पे 2-3 पार्ट करने हैं, but before that by pausing the video please आप इस चीज को या तो पहले लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप बैक में जाके इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। Okay, so I'm rubbing this side now. So we got to know, हम लोगों ने उसे फाई में कन्वर्ट किया, और आफ्टर दैट अब हमारे पास अगर लिमिट है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। b finite is mu naught I by 4 pi a sin, okay, what is that? phi 2. okay, एक चीज और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज, साइन के मींस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स हैं। sin of minus x is always equal to minus sin x। तो साइन में एंगल में जब भी नेगेटिव होगा वो बाहर आ जाता है, तो sin of ये माइनस अगर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस sin phi 1। तो sin phi 1 प्लस sin phi 2। This is the expression for today's first application, and the formula for मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एट एनी पी पॉइंट। व्हाट इज द फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट I by 4 pi a sin phi 1 plus sin phi 2। ओके, अब आपको जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे, आप देखो एक बात सुनो, जब हम इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो एक एंगल कहाँ है? लेफ्ट की तरफ, एक एंगल राइट। अब नेगेटिव नहीं लेना बेटा, नाउ यू डू नॉट हैव टू टेक द नेगेटिव। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं, दिस इज द वायर, दिस इज द पी पॉइंट, ओके, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मान लीजिए ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, मान लेते हैं। मैंने कहा ना जरूरी नहीं दोनों बराबर हो, ये दोनों एंगल तभी बराबर हो सकते हैं जब आप इसके एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे हो। तो चलिए ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो phi 1 मान लीजिए इसे phi 1 ले लेते हैं,
और इसे phi 2। अब देखो एक बात कहा था मैंने कि आप किसे भी phi 1 लीजिए, किसे भी phi 2 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनल रिजल्ट को देखिए। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? sin phi 1 प्लस sin phi 2, sin समथिंग प्लस sin समथिंग। अब अगर मैं 30 को phi 1 लेता हूं तो sin 30 प्लस sin 60। आप sin 30 प्लस sin 60 लिखिए और sin 60 प्लस sin 30 लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? That's why I am saying कि फाइनल रिजल्ट में a प्लस आ रहा है तो a प्लस b लिखिए और b प्लस a लिखिए, एवरीथिंग इज सेम। तो इसलिए किसी को भी phi 1 लो, किसी को भी phi 2 लो, वन थिंग। phi 1 लेट्स सपोज 30, phi 2 60। अब ऐसा नहीं करना है, अब नहीं करना है कि phi 1 को हम नेगेटिव 30 लें और phi 2 को हम पॉजिटिव, ये नहीं करना है। अब मींस आफ्टर हैविंग द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कहां से आया? जब हम लोगों ने लेफ्ट वाले को नेगेटिव और राइट वाले को पॉजिटिव ऑलरेडी टेकन कर लिया है। प्लीज क्लियर माय साइड। हम लोग ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट साइड को नेगेटिव एंगल और राइट साइड को पॉजिटिव, ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव लेने के बाद ही तो ये एक्सप्रेशन आया है। तो इसका मतलब नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड को नेगेटिव, राइट साइड को पॉजिटिव, और वाइस वर्सा कि राइट को नेगेटिव और लेफ्ट को पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है, इंक्लूडेड है इन दिस एक्सप्रेशन। तो अब जब आप इस फॉर्मूले को जब आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इन फ्यूचर तो फिर मत जाना बेटा। अब डायरेक्टली किस पे बात करेंगे? केवल phi 1 30, phi 2 60, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव साइन यूज कर दिया। ओके, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स की टिप्स और कुछ पॉइंट जहां पे हमसे सिली मिस्टेक हो सकती है। So this is the formula for magnetic field due to finite wire, where mu naught I. I stands for the current through the wire. What is A stands for? A stands for the perpendicular distance of the P point from the wire. Phi 1 is the angle with the one end. एक end के साथ angle क्या है? वो जो perpendicular distance है उस लाइन से एक end के साथ phi 1 और दूसरे end के साथ phi 2. But sign use नहीं करना है इन न्यूमेरिकल। चलो लिख ही देता हूं, भूल जाते हो आप लोग। नोट दैट डू नॉट यूज द साइन ऑफ phi 1 एंड phi 2 इन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में फाइनाइट वायर के लिए phi 1 और phi 2 का साइन यूज नहीं करना। ओके, एंड दैट्स with the end of the second application। बहुत लंबा गया है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये लेंथी ही जाएगा। हमने आज स्ट्रेट ही किया है, फाइनाइट स्ट्रेट वायर, बट इंपॉर्टेंट वन। होप यू गॉट इट। डन है? ओके, नाउ सिंस आज सेकंड एप्लीकेशन किया है, along with that I would like to take the third application। एक थर्ड एप्लीकेशन और इसी के साथ मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। कैसा वायर? Infinite straight wire. So we have the straight wire, but the wire is infinite. तो वायर के एंड पॉइंट्स नहीं है इस बार। This is the same P point whose perpendicular distance from the wire is small a. Okay? तो चलिए इससे निकालते हैं। So magnetic field due to infinite wire, ये निकालना है। तो चलिए, वायर infinite है। Let's suppose wire carries the current. Okay, my one mistake that I left. Direction बताना भूल गया बेटा मैं। तो I am taking the diagram again. This was the P point और current कहाँ जा रहा था? ऊपर। So इस बार Maxwell right hand thumb rule और either जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई है clockwise anti clockwise, इमेजिन कीजिए कि करंट P पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है, तो कैसे घूमेगा? क्लॉक की एंटी, so it will rotate in a clockwise direction. और clockwise direction means which pole? South pole. और south pole means magnetic field would be inward. So please add this also. So the magnetic field is inward in direction. Okay. Now magnetic field infinite wire. तो देखिए वही करंट है, I was the current जो हमारा लास्ट केस में था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वही लिया है। ओके, सो I वही है, A वही है। अब एक चीज जो लास्ट केस में और इस केस में वेरिएबल है वो क्या है? The end points. Means the last case the wire was finite in length and in this case the wire is infinite in length. तो जब finite था तो phi 1 phi 2 बन रहा था। अब बताइए ये वायर infinite है
तो इनफाइनाइट है तो ये पॉइंट कहां जाएगा? सो दैट पॉइंट इज योर phi 1। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम किस चीज को इनफाइनाइट बुलाएंगे? तो अगर ये पॉइंट इनफाइनाइट है तो ये P पॉइंट इसके एंड पॉइंट पे जाके मीट करेगा। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। दिस वाज द P पॉइंट, सो P पॉइंट वाज मीटिंग द एंड पॉइंट। जो P पॉइंट है वो एंड पॉइंट पे जाके मिल रहा था, तो यही एंगल हमारा phi 1 phi 2 जो भी देना है वो दे दो। अब बताइए, अब वायर का एंड पॉइंट कहां पे? इंफिनिटी पे। तो बताइए P पॉइंट का ये एक्सिस कहां पे जाके मिलेगा? कहां पर जाके मिलेगा? इंफिनिटी पे जाके मिलेगा। अब इंफिनिटी पे जाके अगर ये मीट करता है तो बताइए, कैन यू गिव मी द पेयर ऑफ टू लाइंस जो इंफिनिटी पे मीट करती हैं? व्हाट यू कॉल द पेयर ऑफ टू लाइंस व्हिच मीट्स एट इंफिनिटी? क्या बुलाते हैं उन्हें? पैरेलल लाइंस। डेफिनेटली यही तो बोलते हो। तो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर द पेयर ऑफ द लाइन व्हिच मीट्स एट इंफिनिटी। ओके, थोड़ा पॉजिटिविटी लाइए ना बोलने में, ऐसे मत बोलो कि जो कभी नहीं मिलते, ये बोलो मिलते हैं सर। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। बट कहां पे मिलते हैं सर? इंफिनिटी पे मिलेंगे। अब अगर इंफिनिटी में मिलना है इन्हें तो दोनों को पैरेलल होना चाहिए, और अगर दोनों को पैरेलल होना चाहिए तो ये phi 1 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। phi 1 कितना हो जाएगा? 90। सिमिलरली नीचे भी कहां मिलना चाहिए? इंफिनिटी पे मिलना चाहिए। अब अगर नीचे भी इंफिनिटी पे मिलना चाहिए, क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट था तो ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, और अगर नीचे भी इंफिनिटी पे मिलेगा तो यहां पे भी पैरेलल, तो इसका मतलब phi 2 भी नियरली 90। सो जब भी वायर इनफाइनाइट होगा तो केस में क्या चेंज आएगा? दैट फॉर इनफाइनाइट वायर phi 1 is equal to phi 2, both would be nearly equal to 90 degree। और अगर दोनों 90 हैं तो हेल्प कर दो मुझे बस b इनफाइनाइट बनाने में। It would be mu naught I by 4 pi a sin 90 plus sin 90। मैंने आपको बोला ना नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे कि ऊपर 90 या नीचे -90 ले, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो गया। सो अगर वायर दोनों तरफ इनफाइनाइट है तो इस बार मैंने दोनों साइड इनफाइनाइट लिया, तो क्या होगा? sin 90 plus sin 90, तो sin 90 1 plus 1 2, so b infinite it is equal to mu naught I into 2 divided by 4 pi a, and 2 with that, so what is the magnetic field due to infinite wire? It is mu naught I by 2 pi a. So magnetic field due to infinite wire, the formula is mu naught I divided by 2 pi a. अब डायरेक्शन की भी बात कर ले। सो अगर ये वायर इसके चारों तरफ इमेजिन करते कि P पॉइंट के चारों तरफ घूमेगा तो कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ही है तो इट वुड बी इनवर्ड वेव। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, our third application completed। फाइनाइट समझ गए, फाइनाइट को लॉजिक में ले आए, फाइनाइट को अप्लाई करना सीख गया, तो इनफाइनाइट सेम ही है, बस इनफाइनाइट में जो चेंजेस होंगे वो है एंगल के। क्लियर है? सो दिस इज आवर थर्ड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट। ओके, नाउ इन दिस इनफाइनाइट वायर मैं एक पर्सनल केस बनाना चाहता हूं आपके सामने। सो वन ऑफ द पर्सनल केस जो मैं आपके सामने रखूंगा, तो एक बार प्लीज अब तक जो चीजें हम लोगों ने अभी तक किया है इसमें, फाइनाइट फॉर्मूला इज mu naught I by 4 pi a sin phi 1 plus sin phi 2। magnetic field due to infinite formula is mu naught I by 2 pi a। डायरेक्शन वो डिपेंड करेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है। सो डायरेक्शन इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन दैट। अब एक पर्टिकुलर केस जो मैं अपने साइड से इसमें ऐड करवाना चाहता हूं, एंड दैट केस इज ड्यू टू हाफ इनफाइनाइट वायर। फर्स्ट वायर क्या था? फर्स्ट वायर वाज फाइनाइट, सेकंड वायर वाज इनफाइनाइट, बट जो थर्ड केस में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ये क्या है? हाफ इनफाइनाइट है, आधा इनफाइनाइट। तो आधा इनफाइनाइट का मतलब ये एंड तो मालूम है,
और P पॉइंट इसी के सामने रख देते हैं भाई, बट जो दूसरा एंड है वो नहीं मालूम। सो इस बार हमारे पास काम ऐसे चल रहा है, यानी A पॉइंट यहीं पे और यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके लिए हेल्प करेंगे मुझे। सो फॉर दिस केस चलिए phi1 मतलब नीचे वाले एंड, अब इस बार नीचे वाला एंड कहाँ है, एग्जैक्टली आपके सामने है। अगर ये A पॉइंट थोड़ा सा नीचे भी होता, तो अगर ऐसे करते कि भाई A पॉइंट यहां तक है, तो phi1 की कुछ वैल्यू होती बट phi2 90 बन जाता। तो जिस एंड पर 90 है, जिस तरफ 90 है, सॉरी जिस तरफ इनफाइनाइट वायर, सॉरी माय मिस्टेक, जिस तरफ इनफाइनाइट वायर है वहां तो एंगल कितना जाएगा, 90 जाने वाला है, तो phi2 तो 90 हो गया। अब दूसरे एंड को देखिए, अगर दूसरा एंड थोड़ा नीचे होता तो phi1 कुछ वेल डिफाइन होता, बट इस बार मैंने P पॉइंट को अदर एंड के बिल्कुल सामने ले लिया। आई हैव टेकन द P पॉइंट एग्जैक्टली एट द फिक्स पॉइंट, उसके सामने ही है A पॉइंट। अब बताइए phi1 कितना होगा, तो phi1 क्या होता था, एंड पॉइंट और वो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके एंगल। तो इस बार हमारा एंड पॉइंट भी यही है, परपेंडिकुलर एक्सिस भी यही है, तो इस बार हमारा phi1 क्या होगा, 0। और अगर ऐसा है तो आई यूज्ड टू कॉल, मैं इस वायर को क्या बुलाता हूं, हाफ इनफाइनाइट। मैंने कहा ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑब्वियसली बात है मेरे स्पोकन में आपको मिलेगी, यानी मैं कुछ चीजों को ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि वो समझने, पढ़ाने या फिर बोलने के तरीके हैं। तो हाफ इनफाइनाइट जैसा कोई केस एनसीईआरटी में या फिर कहीं पर भी टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं लिखा होगा हाफ इनफाइनाइट वायर, जैसे आपको प्रोजेक्टाइल में करवाया था ना, हाफ प्रोजेक्टाइल फुल प्रोजेक्टाइल, बट हाफ प्रोजेक्टाइल नाम की कोई चीज है नहीं बुक में, बट वो समझने के लिए थी, तो इसलिए मैं इसको हाफ इनफाइनाइट बुला रहा हूं। तो हाफ इनफाइनाइट में phi1 तो 0 हो गया, जो पॉइंट उसके सामने उसके लिए तो एंगल 0, और जो इनफाइनाइट है उसके लिए 90। तो इस बार B हाफ इनफाइनाइट क्या बना, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई A sin phi1 0 प्लस sin 90 phi2। तो sin 0 0, sin 90 1 और 0 प्लस 1 1, तो B हाफ इनफाइनाइट क्या बना, हाफ इनफाइनाइट क्या बना, म्यू नॉट I बाय 4 पाई A। So this is the one case जो मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप अपने पास ऐड करें, क्योंकि इसे न्यूमेरिकल्स में बहुत बार देखा गया। तो न्यूमेरिकल्स में एक अप्रोच आपको देखने को मिलेगा जहां पे चीजें थोड़ी बहुत ट्विस्टेड होंगी, तो उसमें से एक ट्विस्टेड पार्ट मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ओके। या फिर आप इसे ऐसे याद रखिए कि इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई, ये पूरी इनफाइनाइट का है। अब अगर वायर को आधा काट दे, याद करने का तरीका है ये तो मैंने लॉजिक दिया, अगर वायर को हाफ कट कर दे तो आधा ही इनफाइनाइट अगर रखें तो ऑब्वियस ही बात है पूरे इनफाइनाइट का ये है, तो हाफ इनफाइनाइट, अगर वायर ही हाफ इनफाइनाइट आधा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधी हो जाएगी, ऐसे याद कीजिए। और अगर इसका हाफ करें, मतलब इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड बोलो, तो इसको अगर 2 से डिवाइड करते तो फॉर्मूला यही आता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर फुल इनफाइनाइट है तो फॉर्मूले के साथ ये जाएंगे, और अगर हाफ इनफाइनाइट है तो ऐसे जाएंगे। डायरेक्शन वही तरीका, करंट ऊपर जा रहा है, P पॉइंट यहां है, तो सोचिए कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो मैंने इसे ओके। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अभी इन दीस एक्सप्रेशंस मैंने इनवर्ट दिखाया, तो जरूरी नहीं हर बार इनवर्ट हो बेटा, वो तो P पॉइंट कहां पे, अगर मैंने P पॉइंट लेफ्ट की जगह पे, सॉरी राइट की जगह पे यहां रखा होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता, तो आउटवर्ड आती। करंट ऊपर की जगह नीचे होता तो सो दैट डिपेंड, मींस करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो हम बाद में बोलेंगे हमेशा, वेदर यू आर डूइंग द डेरिवेशन और वेदर यू आर डूइंग द न्यूमेरिकल। चाहे तुम डेरिवेशन कर रहे हो चाहे तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो, डायरेक्शन लास्ट में बतानी है, पर पक्का जरूर बतानी है। अगर आप डायरेक्शन नहीं देते हो तो अकॉर्डिंग टू मी आपके हाफ मार्क्स कट जाने चाहिए, और ये बात याद रखिए इन फ्यूचर क्लास टेस्ट के लिए। स्टार्ट में बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर मैंने आपको कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला, हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर में, अगर मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला आइदर इन न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, आई आस्क कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने नहीं बोला कि डायरेक्शन भी कराओ, बट आई आस्क कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। प्लीज अंडरस्टैंड, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी
एंड इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो डेफिनेटली इसको क्या करना चाहिए, इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। तो पूछें या ना पूछें, आपको तो डायरेक्शन बतानी ही बतानी है, क्योंकि डायरेक्शन के बिना मैग्नेटिक फील्ड अधूरा है। ओके, सो विद दैट नोट एंड विद दिस पॉइंट, दिस लेक्चर इज बीन ओवर हियर, यहीं पे ओवर है। और आज हम लोगों ने स्ट्रेट वायर को स्टडी किया। फर्स्ट एप्लीकेशन मींस आज का फर्स्ट एप्लीकेशन थोड़ा लेंथी था, और उन्हीं के बेसिस पे नेक्स्ट सेकंड मींस इनफाइनाइट पढ़ा, आज का सेकंड, और हाफ इनफाइनाइट जो मैंने ऐड करके दिया। ओके, सो विद दैट नोट, विद दैट पॉइंट, एवरीथिंग इज बीन डन हियर। न्यूमेरिकल्स लास्ट लेक्चर में भी नहीं दिया था, अभी भी कोई असाइनमेंट नहीं पुट कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ द वन रीजन, बिकॉज हम सारी एप्लीकेशंस को करने के बाद मींस एक दो और एप्लीकेशन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आफ्टर दैट वी विल कंबाइन द न्यूमेरिकल्स, बिकॉज न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आएंगे कि आपके पास वायर मिलेगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, बट उस वायर का कुछ हिस्सा स्ट्रेट होगा, कुछ हिस्सा सर्कुलर होगा, तो दोनों मिक्स होंगे। तो विद दैट नोट हम लोग मीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, एंड आफ्टर दैट वी विल डू द असाइनमेंट। टिल देन अपने एप्लीकेशंस की प्रैक्टिस कीजिए, डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो विद दैट नोट कंप्लीट, आई होप आई एम क्लियर विद द टुडेज लेक्चर के साथ मैं कंप्लीटली क्लियर हूं। अगर फिर भी कोई डेरिवेशन और एक्सप्रेशन में डाउट आएंगे, प्लीज फाइनाइट वाले में आते हैं बहुत बच्चों को, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, कभी भी पूछिए, कुछ भी पूछिए। आई विल ट्राई टू गिव यू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो भी मैं पॉसिबली कर पाऊँ। Okay, so with that note, complete today's lecture. Thank you very much.